Good morning, everyone. This is your English class. Today, we will continue our previous chapter, types of sentences or sentences. In previous class, we have studied about the definition of sentence and what is a sentence and the types of sentences. So first, we revise the previous class, then we will start the new topic. The what is a sentence? Sentence क्या होता है? A sentence is a group of words arranged in a proper order that makes a complete sense. We have studied in previous class, and what the type of the sentences are, we have the four types of sentences: assertive sentence, negative sentences, exclamatory sentences, and imperative sentences. And two types of sentences we had studied in last class. The first is assertive sentence. Now, what is an assertive sentence? An assertive sentence states something about the subject or makes a statement. They convey the information or a state of fact through the statements, and they always end with a full stop. इनके always end में हम क्या put करते हैं? एक full stop लगाते हैं. Clear that thing. And it can be positive or negative sentences. ये हमारा जो sentence होते हैं ये हमारे positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं. For the examples, मैंने आपको बताया था example में I live in Tonk and I do not live in Tonk. Both are the examples of the assertive sentence. Second, I told you the interrogative sentences. Interrogative sentences always ask something. Okay, ये हमेशा हमसे कुछ ना कुछ सवाल करते हैं. Ask questions. Okay, ask questions और जो ask करते हैं इसका formation भी two types के होता है. The first, some questions begin with a question words like a when, where, whose, which, whom, why, how, what, etc. तो इसमें we got some answers. We get some answers. Like for the example, what are you doing? So we have the answers कि what actually what we are doing. We are learning, we are studying, we are playing, like that. The second is how are you? आप कैसे हैं? तो इसका हमें आंसर्स मिलेगा कि हम कैसे हैं. We are well, we are not well, whatever. But it has the answers. And the second formation, like the some questions start with the helping verbs. Helping verbs यानी कि such words like is, am, are, was, were, will, shall, can, could, may, I, may, am, etc. तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. इन हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू हम क्या करते हैं? सिंपल सेंटेंस है शी इज़ योर सिस्टर. अगर हम इसका क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे? इस जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे उसको आगे ले आते हैं. एंड सेम एज इट इज़ शी योर सिस्टर. एंड रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर वी मैक क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब इट गिव्स ऑलवेज आंसर इन यस और नो. हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं उसका आंसर किस में आता है? यस और नो में हमें मिलेगा. ओके, नाउ सो मूव ऑन आवर न्यू टॉपिक दैट वी लर्न टुडे. We will study about the remaining two topics, two sentences. The first is exclamatory sentences and another is imperative sentences. Okay, so sentences, exclamatory sentences. What are the exclamatory sentences? They express sudden or strong feeling such as excitement, joy and wonder. It means हमारे अंदर जो भी एकदम अचानक से, सडन मीन्स अचानक से जो भी इमोशंस आएगा, जो भी फीलिंग होगा, वेदर इट इज़ जॉय और सैडनेस या लास्ट, जो भी फीलिंग आएगी, जैसे वो एक्साइटमेंट की आ रही हो, जॉय की आ रही हो या हम सैड हों उसकी आ रही हो, उसको हम किस में शो करते हैं? बाय द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. लाइक सपोज हमने कोई ब्यूटीफुल हाउस देखा, बहुत खूबसूरत घर है, तो उसको देखते ही हमारे मुँह से निकलेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़. कितना खूबसूरत घर है ये. तो दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, देन हम किसी को कुछ कॉम्प्लीमेंट दें, जैसे अंशु ने कुछ अच्छा वर्क किया, बोलेंगे वेल डन. तो जितनी भी ग्रीटिंग्स होंगी आपकी वो सभी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगी. वेल डन, थैंक यू, हेलो, हाय, ऑल आर इन शोज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, सो
Remind it, they express sudden or strong feelings such as excitement, joy and wonder, and they always end with an exclamation mark. वो हमेशा काय से एंड होते हैं आपके exclamation mark, like that. ये exclamation mark होता है, वन लाइन ड्रॉ करें, नीचे एक पॉइंट लगा देना ऐसे डॉट, that is the exclamation mark. So this was so exciting, that was so exciting, what a surprise, how talented she is, all the examples of the exclamatory sentences. Okay. Oh, I lost my pen, मैंने अपना पेन खो दिया. Alas, his father is no more, बहुत दुख की बात है कि उसके पापा अब नहीं रहे. तो ये जो फीलिंग्स हैं आपकी अचानक से जो आती हैं, वो खुशी की हो, गम की हो, या किसी भी सैडनेस की हो, एक्साइटमेंट हो, वो सब किस में शो होंगी? आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में शो होंगी. ओके. नेक्स्ट है आपका फोर्थ इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके? दे एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, अ वार्निंग और एन एडवाइस. जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हम क्या शो करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं? कमांड. यानी कि अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो हमारा ऑर्डर कौन से सेंटेंस में आएगा? आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आएगा. ठीक है. किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा. रिमेंबर वन थिंग दैट कि दे बिगिन विद अ वर्ब. ये हमेशा किसी वर्ब यानी किसी एक्शन से शुरू होंगे. ओके. या फिर हम कोई रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं तो वो ऐसे शुरू होते हैं काइंडली या फिर प्लीज से हम शुरू करते हैं. बाकी हम इसके जो जनरली यूज़ होता है आपका एक्शन वर्ब से. तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक वन वर्ड भी आपका सेंटेंस हो जाता है, बट व्हाट इज, बल्कि उसके पीछे शर्त क्या है कि वो आपको एक कंप्लीट सेंस दे रहा हो. जैसे कि मैंने बोला गो आउटसाइड, बाहर जाओ. तो गो आउटसाइड मैंने बोला तो मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स हैं और उसमें सिर्फ एक्शन वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, गो आउटसाइड, बट इट गिव्स द कंप्लीट सेंस. वो आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है कि आप बाहर जाइए. तो ये आपको क्या कहलाएगा? आपका सेंटेंस कहलाएगा. बट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? इसमें मैं आपको कमांड दे रही हूँ, आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि गो आउटसाइड. तो इट्स कॉल्ड द इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो सिंपल वे में हमने जब टेंसेस पढ़े थे, हमने फॉर्मेशन सीख लिया था कि एक सेंटेंस में क्या क्या होता है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या प्लस वर्ब plus man verb plus object and plus complement if the complement is there. So that is the formation. All know about that because we have studied about this topic, the formation of a sentence. एक sentence की formation कैसे होती है ये हम हमारे tenses में पढ़ चुके हैं. That's why मैंने उसको repeat नहीं किया है. हमें सिर्फ समझना है कि types of sentences कौन से होते हैं. Formation of sentence we discussed in our previous classes. So the imperative sentence, दे एक्सप्रेस अ कमांड. तो सिंपल वे में कोई हेल्प एक्शन है वो भी आपका एक सेंटेंस बन सकता है इफ़ इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. क्लियर दैट थिंग? लाइक एंड दे ऑलवेज एंड इन अ फुल स्टॉप. और आपके जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा काय से एंड होते हैं? फुल स्टॉप. इनके लास्ट में हमेशा क्या आएगा आपकी? हमेशा ऑलवेज वी हैव अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. क्लियर दैट थिंग? एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. कभी कभी क्या होता है कि इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इफ़ द स्पीकर यूजेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अगर यूज़र जो है जो बोल रहा है वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को आपको बता रहा है व्हेन गिविंग एन ऑर्डर, एन एक्सक्लेमेशन मार्क कैन बी यूज. तो वहाँ पे हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं इन स्टीड ऑफ ए फुल स्टॉप. जैसे कि मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, मैं बहुत वो तो मैं बोलूँगी लीव दिस टू मी, उसको छोड़ दो मेरे लिए. तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरी, तो वहाँ पे मैं फुल स्टॉप की जगह एक्सक्लेमेशन लगा सकती हूँ. ओके. क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब हम शो करेंगे तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? इन स्टीड ऑफ द फुल स्टॉप वी कैन पुट एक्सक्लेमेशन मार्क विद द एंड. ओके. अंडरस्टूड दिस? किसी से हमें रिक्वेस्ट करनी है तो हम बोलेंगे प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ फेवर, लाइक दैट. तो जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो उससे पहले हम कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं? प्लीज़ और काइंडली का. किसका यूज़ करेंगे हम? प्लीज़ और काइंडली. ओके. क्लियर दैट थिंग? yes, and they also end in a full stop. Clear? Now the next is next example, go outside, बाहर जाओ.
You must consult a doctor. It is an example of an advice. डॉक्टर में एडवाइस देता है कि वो हम किसी को, हमारा फ्रेंड है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वेल नहीं है, तो उसको बोलेंगे तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. डोंट एंटर दिस रूम, दिट इज़ ऑल्सो एन ऑर्डर. वॉक केयरफुली, कमांड. सो ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें हम कमांड दिखाएं, रिक्वेस्ट करें, काइंडली गिव मी अ हग या गिव मी अ वाटर, लाइक दैट. ओके, तो ये सब आपकी किस में आएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आएंगे. ओके, सो वी हैव स्टडीड द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, द असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. दैट इज आवर टॉपिक सेंटेंस. सेंटेंस हमारे क्लियर हो चुका है. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आल्सो आर देयर. सो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फॉर्मेशन हम हमारी प्रीवियस क्लास में, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस थी, हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. दैट्स वाई हमने उसको रिपीट नहीं किया है. हमने सिर्फ अभी पढ़ा है कि सेंटेंसेस कौन कौन से किस तरीके से होते हैं. क्लियर दैट थिंग. नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये तो थे आपके जो सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन होता है आपके सिलेबस में ये दे रखा है कि 1 टाइप क्लासिफिकेशन, तो ये हो गया 4 टाइप्स. एंड अदर क्लासिफिकेशन भी होता है जो हमने कि टेंस में पढ़ा था. हमने टेंसेस में क्या पढ़ा था, सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव. क्लियर, वो सबको क्लियर है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. क्लासिफिकेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है. द फर्स्ट इज जो हमने पढ़ चुके हैं, हमारे सेंटेंस में जो फॉर्मेशन आया था, एक सेंटेंस बनता है अफर्मेटिव का, एक होता है निगेटिव का. यहाँ अफर्मेटिव निगेटिव को एक करके असर्टिव बना दिया गया है कि हमारा इंटेरोगेटिव एक होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. इसमें कोई इंटेरोगेटिव भी क्वेश्चन किया जाता है और उसमें नहीं भी होता है. क्लियर that thing. I hope you all are understood this. If you have any problem you can ask me. Okay, so clear that thing. If you have any problem you can consult in our online classes and I'll send you a PDF of the book activities, then you will complete it. Okay, till then take care.